بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں۔ حالات کو، آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں کٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا، اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
इमाम साहब को इतने दुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूं, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूं। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल, मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलया, जो मिले तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलेगा, जो मिले तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी देख के भेज दिया, बात खत्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला जा, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी खत्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे। फरमाते हैं कि वहां पैसे वैसे भी खत्म हो गए, पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। हमारा बच्चा माशाल्लाह से जो अब्बा जी से पूरे पैसे लेके जाता है ना पढ़ने के लिए, उसका भी पूरा प्रेशर होता है अब्बा जी के, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हालांकि बाद में पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा कराता है, अब्बा जी को देता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ आपके हुक्म पर, लिहाजा आप मेरा एहसान माने। माज़ अल्लाह था। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूँ उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में। 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था। आज जेल में जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना, उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? का बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद है। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक अगर स्टूडेंट का बनता है ना, तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हजरत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा। तो कुछ लोग कहने लगे हजरत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां अदावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रिड़क के मक्खन कट के लै गया, इदियां अदावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं, और कुछ कहते रहते हैं हजरत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहां सिपाही खड़े हैं ना वो इमाम साहब का दरवाजा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूं। सब्र देखो, इस्तिकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी, और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से 2 जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला,
तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारां कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ। मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है, इस्तकामत, सबर, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आता तो वो 1 दिनार भी रोज देते और हदीसें भी रोज ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहनकर, इमामा बांधकर, खुशबू लगाकर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मजा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से ही कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, तो यह है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रा अल्लाह पे छोड़ें। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे।